नमस्कार। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के इस मौके पर मैं एसोचैम के साथ मिलकर आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है हैंड हाइजीन। आप अपने हाथ को साबुन से बार बार धोइए। अपनी सेहत की सुरक्षा अब आपके साफ हाथों में है। हैंड हाइजीन की आदत अपनाइए, खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाइए। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आने वाले 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है। सालों की रिसर्च में और अनगिनत साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि हाथों की साफ सफाई ही बीमारियों से लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है और भारत को कोरोना मुक्त कराने के लिए हमारा सबसे सरल और मोस्ट पावरफुल हथियार भी है। तो किसी भी साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धो करके आप भी देश की इस जंग में अपना दायित्व निभा सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ हाथ तो स्वस्थ आप। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी। कोविड-19 के प्रकोप से धीरे धीरे दुनिया उबरने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारतवर्ष ने कोरोना महामारी से निपटने में जिस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति और तत्परता दिखलाई है, पूरे विश्व में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वयंसेवी संगठन, एक एक व्यक्ति यह संदेश समझने और पहुंचाने में सफल हुआ है कि हम और आप मिलकर ठान लें तो कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने में सबसे बड़ी सहायता हमारे करते हैं हमारे हाथ और हमारे हाथों से जुड़ी थोड़ी सी हाइजीन के टिप्स। मित्रों, यदि हम अपने हाथों की सफाई पर नियमित ध्यान रखें, लगभग 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं और धोते रहें। प्रतिदिन शौच के बाद, यदि कभी आप खांसते हैं तो उसके बाद, छींकते हैं तो उसके बाद, खाना बनाने के पहले, भोजन ग्रहण करने के पहले हाथ को धोते रहें। याद रखिए कि हाथों के जरिए ही कोरोना का संक्रामक कीटाणु आपके भीतर प्रवेश करता है, इसलिए हाथ और मुंह का भी कनेक्ट मिनिमम रखिए। इन्हीं बातों के मद्देनजर आगामी 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जा रहा है। तो याद रखिए, इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो भारतवर्ष कोरोना को हरा पाएगा। याद रखिए, हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। वंदे मातरम। Good afternoon, everyone, and it's absolutely amazing to see you all. And at the outset, absolutely delighted to have you all there today with us. It's such a different times that we are in, connected on webinars and talking over the internet phones and sitting at our own residences and wherever we are. But I think still we are united in this fight against Corona. To begin this program, I now invite Mr. Vineet Agarwal, who is a Senior Vice President, ASSOCHAM, and Managing Director of TCIL, to open the webinar. Vineet. Thank you, Commander Navneet. It is my pleasure to welcome you today to the webinar on Mission Swachh Bharat. And thank you all for joining us today to mark the World Hand Hygiene Day. I think the relevance of something like this is absolutely very high in today's scenario. As we battle COVID, hand hygiene will continue to perhaps be the most effective savior.
and we believe it is very important today to reaffirm and highlight its importance. This is such an important subject that even our Honorable Prime Minister has, through a message, shared with us his vision for Swachh Bharat and his blessings for this specific event. Today, I will have the pleasure of welcoming our Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaubey ji. And we will look forward to hear from him on how we should look at the next steps in terms of fighting this disease. In the coming days, we have to keep up our guard to protect ourselves, our families and communities by adopting hand hygiene and social distancing. I think we have listened to a few videos and you will listen to several presentations on the best practices in this area. Let us pledge towards adopting the hand hygiene in our daily routines as an important step towards creating a Swachh Bharat. Thank you. And once the minister comes on, I will come back again and greet him. Thank you. Thank you, Vineet. As we wait for the minister, we'll take the program forward. And, you know, who could have believed that such a mundane topic like hand hygiene would become such an important one? Thousands of people die every day around the world from infections, hands being the pathways of germs. Hand hygiene is therefore the single most relatively easily achievable measure to avoid transmission of harmful germs. If you all remember, when we had just started talking about coronavirus, you remember we all had emphasized on two things. One is maintain hand hygiene, wash your hands with soap and water or disinfectant or a sanitizer, and do not touch your faces. And believe you me, long after this present pandemic has subsided, hand hygiene will still remain a single most important step to prevent the burden of infectious diseases on any population. We had announced a poster competition amongst schools, and the response from the children was fantastic. We received more than 1,200 entries, which showed clearly that even children understand how important hand hygiene is for our health. So taking this opportunity once again to thank you all, let me introduce the first panelist to you. Dr. Girdhar Gyani, I think known as the Chanakya of quality. Dr. Gyani comes with over 40 years of experience in various facets of healthcare. He is currently the Director General of HPI and was instrumental in setting up India's most respected accreditation committee, or the NABH as we know it. There are many more roles that he has played during his illustrious career. We could not have found a better speaker than him to talk about best hand hygiene practices. Over to Dr. Gyani. Okay. Good evening, friends, and special thanks to Navneet Bali and my colleagues from SHM for organizing this webinar. In fact, this is so happy that this is also a year of nursing and midwives. Internal Midwives Day is being also celebrated today itself. So these two components are very important, and the WHO theme is save the lives, clean your hands. So that is where it is very important to understand. And I will just be showing you 9 or 7 slides to you here. Let me open the slides. Okay. Can you see the slides? Is it okay? Now we can see it, sir. You can go ahead. We can see. Oh, yeah, that's right. Sir, please open in full screen, please. The minister has just. Vineetji, I think just to interrupt Gyani-ji, I think the Honorable Minister is here. So let me just do a welcome for him, and then maybe he could be. Okay. Vineetji. नमस्ते सर, मैं विनीत अग्रवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसोचैम से बोल रहा हूँ. Sir, it's our pleasure to welcome you today to the World Hand Hygiene Day. Thank you, sir. Thank you for joining us today. It is a very important occasion. And हमारे साथ करीब 350 से 400 लोग already join कर चुके हैं और ये webinar को देख रहे हैं.
सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आज का कार्यक्रम है और ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अपने एक मैसेज हमें शेयर किया है और उनका विजन स्वच्छ भारत के लिए और इस इवेंट का उन्होंने ब्लेसिंग भी दिया है। तो सर, थैंक यू सो मच, आप आज ज्वाइन किए हैं। पर्सनल हाइजीन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी ये बहुत क्रिटिकल है। तो ये हम जो कार्यक्रम रखे हैं, इसका बेसिस ये है कि हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हाथ की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक साबुन से हाथ धोने से नहीं होगा, ये हमें एक आदत बनानी होगी। और ये आदत बनाने के लिए जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चालू किया है और हमारी संस्था भी कर रही है, इसको ज्यादातर प्रोपोगेट करें कि ये एक आदत बन जाए और हम सब लोग इसको अडॉप्ट कर सके ताकि कोरोना जैसे इन्फेक्शन को दूर कर सके। सर, एसोचैम पिछले कई हफ्तों से, जब से ये चालू हुआ है, हम इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल करके करीब 10 लाख साबुन हर कम्युनिटी में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मैं भी जैसे मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी हमने साबुन जरूर दिया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जहां भी लेबर है या कोई भी स्टाफ जाता है बाहर, तो हैंड सैनिटाइजर नहीं मिलता है, लेकिन पानी जरूर मिल जाता है और साबुन अगर हाथ में है तो उससे इमीडिएटली वो अपने आप को साफ रख सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐसी चीज है जो हमें सबको अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। सर, जब बिफोर आई आस्क यू टू से समथिंग, मैं आपका एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and is a member of the 16th Lok Sabha. He belongs to the BJP and from the Buxar constituency. He was also the former health minister of Bihar. चौबे जी का जो एक बहुत लोकप्रिय उन्होंने जो स्लोगन दिया था, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बेटी का कन्यादान, ये इससे करीब 11,000 टॉयलेट इन्होंने बनवाए हैं और कई पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी इन्वॉल्व है और मेंबर ऑफ द सिल्क बोर्ड भी हैं। इन्होंने कई पोर्टफोलियो में अपना योगदान दिया है। और सर, मैं आपसे भी विनती करूंगा, कुछ हमें हमारे अटेंडीज को कुछ जरूर बताएं और हम इसको कैसे आगे ले सकते हैं। थैंक यू सर। आज सबसे पहले ये एसोचैम के द्वारा आयोजित वेबिनार, कभी हम लोग सेमिनार करते थे, आज कोविड के दिनों में हम वेबिनार कर रहे हैं। इसके लिए मैं एसोचैम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज सैकड़ों लोग इससे जुड़े हैं। हम एक दूसरे को इस वैश्विक महामारी के समय में, जो आज जिसको वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कहते हैं, यानी कि हाथ धोने का दिवस, ये 5 मई WHO के द्वारा इसको देश भर में हम लोग हर साल इसको अपनाते हैं। और इस कोविड के कालखंड में जो सही है, जैसा कि हम कहते हैं क्लीन केयर इज सेफ केयर, तो स्वच्छता स्वच्छ रहे, जितना साफ रहेंगे उतना ही ज्यादा हम सुरक्षित भी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एक मेजर चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। मुझे याद है जब मैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था, PHED मंत्री था, उस समय भी लोक स्वास्थ्य मंत्रालय का काम करते हुए मैंने पदयात्रा की थी। पूरी राज्यों में हमने पदयात्रा की थी, हर जिले प्रखंड में गए और वहां हमने एक ही नारा दिया था, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। और उसके पीछे हमने वो प्रेरणा कहीं गुजरात से भी ग्रहण किया था। मैं गुजरात में प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं वहां गया था। वहां के चीजों को देख करके, स्वच्छता को भी देख करके मुझे भी लगा कि क्या बिहार में हम नहीं कर सकते। बिहार में जहां 1000 शौचालय भी नहीं बन पाए थे, वहां हम लोगों ने आकर के
और श्रमदान के द्वारा मैं यात्रा में 2 घंटे श्रमदान करता था, सबको जोड़ता था, गांव के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और सारे बच्चे, बूढ़े, सब प्रकार के लोग, और जिस घर में जाते थे उसके घर के मालिक और मलकान जो भी होती थी, माता बहन, उनको कहते थे कि भाई चलो कुदाल लेके मैं कुदाल पाता हूँ, तुम मिट्टी उठाओ, और लोग धीरे धीरे ईटा लेकर के और लाइन लग जाता था और कुछ ही क्षण में शौचालय बना देते। हमने अपनी यात्रा के क्रम में 2 घंटा श्रमदान करके अपने हाथों से, सबके सहयोग से 11,000 शौचालय हमने बनाने का काम किया था 1 साल में। और 3 साल हमारी ये यात्राएं साल में 2-3 महीने चलते रहते। हम स्कूलों में जा करके हाथ धोने के लिए बताते थे। आंगनबाड़ी में जो हमारी सेविका होती थी, मैंने एक जगह देखा कि वो आटा सान करके और हाथ धो रही थी, इतना काला पानी हो गया। मैंने कहा देखो बहन जी, आप बच्चों के लिए खाना बना रही हो, अपने घर के बच्चे हैं, क्या हालात है, इससे कितनी बीमारी होगी जो आप बता नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से भी वो दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ऐसे जनसाधारण को दिखाई नहीं पड़ सकता। और मैंने उनको हाथ धोने के लिए, मैं जहां भी जाता था वहां अपने से हाथ धोने के लिए स्कूलों में, जगह जगह उस यात्रा के क्रम में हम स्कूल जाते थे, हाई स्कूल भी जाते थे, गर्ल्स स्कूल भी जाते थे, और अपने बच्चों के स्कूल में जाकर के और आंगनबाड़ी में और स्वास्थ्य के अस्पताल में जाकर के उनको हाथ धोने का आग्रह करते थे और बताते थे। अब देखो आज थूक फेंकने की बात होती है, आज सरकार ने एडवाइजरी जारी की, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, उस समय थूक फेंकने पर भी दंड का प्रावधान। लोग इसको धीरे धीरे भूल गए। अब वो अभ्यास फिर एक कोविड के कालखंड में, अगर हमको अभिशाप के रूप में ये वैश्विक महामारी कोविड मिला है, तो हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मुझे आज के दिन जो WHO का ये रिसर्च पेपर भी उनके कई प्रगत हुए, कई उन्होंने दिया है, जहां हेल्थ केयर वर्कर के लिए उन्होंने कहा कि अपने 8 घंटे के दौरान कम से कम 5 बार हाथ धोए। अब हाथ धोने का भी कला है, हर प्रकार से किस प्रकार से हाथ धोते हैं, ताकि मतलब 20-25 सेकंड में हम पूरे हाथ को अच्छी तरह से धो। इससे किसी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं इस प्रकार का कोई कीटाणु वो हाथ शुद्ध हो जाएगा और वो प्रवेश नहीं करेगा। तो ये WHO की मान्यता है कि 5 बार, यहाँ तक कि उन्होंने तो कहा कि 8 घंटे में 42 बार हाथ धोना चाहिए। फिर मैं उस कितने बार हाथ धोएं, ये बात मुख्य रूप से ये निर्भर करता है कि हम समय समय पर हाथ धोएं। और जैसा कि कोविड में कहा गया कि हम अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं बिना हाथ धोए हुए, यह जो बात कही गई उसका अनुपालन भी लगभग लोगों ने किया, और उसके कारण लाखों लोग, आज करोड़ों लोग ऐसे कोविड के बीमारी होने से, संक्रमण से बच पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के अवसर पर, यानी कि विश्व का जो हाथ धोने का या स्वच्छता का जो दिवस है, शरीर की शुद्धि का, तो दिवस पर हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हेल्थ केयर वर्कर को हम शिक्षित करें, लोगों को बताएं, अपने परिवार में जहां बच्चों को बताते हैं वहीं इसके लिए प्रेरित करें, और ऑटोमेटिक रूप से लिंक लगाना, पानी और साबुन, आपने कहा कि हमने साबुन बांटने का काम किया, बहुत अच्छी बात है। आज कोविड के कालखंड में बहुतों ने जगह जगह जहाँ खाद्य सामग्री हम दे रहे हैं वहाँ साबुन भी हम दे रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में, बक्सर में, और हमारे ग्रामीण, हमारे घरेलू क्षेत्र जो भागलपुर है, हमने तय किया कि कम से कम 1 लाख लोगों को, हम उन गरीबों को जो एकदम निहायत जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम आम लोगों के सहयोग से हम उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। और ये काम हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। साबुन भी दे रहे हैं उस पैकेट में, जहाँ चावल, दाल, चूड़ा, आटा, साबुन, तेल, उसमें एक साबुन भी भेज रहे हैं, बिस्किट भी दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये काम सब लोगों ने मर्यादा पूर्वक किया है और हर के सहयोग से किया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो मन में आता है, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता पर बल दिया 2014 में, हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से महात्मा गांधी के उस 150वीं जन्म जयंती पर हमने स्वच्छ भारत बनाने का जो संकल्प लिया, और वह एक, हम कह सकते हैं कि उनके जन्म जयंती पर हमने उनको एक गिफ्ट, एक उपहार दिया है देशवासियों ने, कि हम स्वच्छ रहेंगे और घर के अंदर
चाहे वो शौचालय से आने के बाद लोग अच्छी तरह हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं या राख से हाथ धोएं। जिनको साबुन उपलब्ध नहीं हो पाता है, राख से हाथ धोते हैं ताकि उनका कीटाणु उनके भीतर प्रवेश न करे। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हाथ की गंदगी से ही अधिकांश बीमारियां जो पैदा होती है। हम खाते हैं, हम दिन में कोई भी काम व्यवहार में लाते हैं तो हाथ का ही प्रयोग ज्यादा होता है, और इसलिए हाथ का धोना खाने के पहले हम बच्चों को भी बताते हैं, और बच्चे भी बड़ा इससे अनुग्रहित होते हैं, और उनको भी ये हर माँ बाप अपने बच्चों को खाना खाने के पहले हाथ धो, शौचालय से आए अच्छी तरह हाथ धो, दिन में और खेल कूद करके आते हो हाथ धो। हाथ को धो करके ही अपने आंख, नाक और मुंह को छूने का काम करता है। तो कई प्रकार का जो कीड़े मकोड़े का जो ऐसे वायरस है वो प्रवेश नहीं करता, तो हाथ के माध्यम से होता है। तो मुझे खुशी है कि आज आपने एसोचैम के द्वारा पूरे देशवासियों को, दुनिया के लोगों को आपने इस कोविड की घड़ी में, वैश्विक महामारी में इस युद्ध को जीतने के लिए स्वच्छता को अपनाने का बल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प, और आज सचमुच में कोविड के कालखंड में हमको 2014 से जो स्वच्छ भारत की प्रक्रिया में हम जा रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा बल प्रदान हुआ। ये हम कह सकते हैं कि आज दुनिया जिस रफ्तार से आज ये वैश्विक महामारी बढ़ रहा है दुनिया में, भारत उसमें बेहतर कर रहा है, इसमें कहीं दो मत। आज हमारा इम्यून सिस्टम भी दुनिया के और देशों से अच्छा है, तभी तो हम कुछ उनसे बेहतर करने की स्थिति में आए हैं। हम यह भी जानते हैं कि आज कोविड जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वही अच्छाई यह भी है कि लगभग 27% से अधिक लोग घर वापसी जा रहे हैं। आप जहां 3 दिनों में डबलिंग हो जाता था ये संक्रमण के रोगी, वहां अब वो 12 दिनों का हो गया है कि 12 दिन में डबलिंग हो रहे हैं। धीरे धीरे कई चीजों का, और उसका एक ही कारण है कि हम जो भी कोविड के मरीज होने के बाद भी उनके प्रति जो विश्वास है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की जो बात है, उनको किसी प्रकार का एक आत्मबल बनाए रखने की बात है, उनके मनोबल को ऊंचा रखने की बात है। और उसमें हमारे चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, बड़े पैमाने पर जो हमारे पुलिस कर्मी, सभी लोग आज कोविड के इस वैश्विक घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। हमें अपने संकट को अपने ऊपर झेलते हुए आज बहुत सारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, नॉन कोविड के भी मरीज से आज बहुत सारे चिकित्सकों को भी और चिकित्सा कर्मियों को भी कोविड का मरीज बना पड़ा है। जो कोविड के संपर्क में है वो तो एकाध वह केस भी उदाहरण के लिए कई जगह हुआ है, दुनिया के कई देशों में और अपने देश में भी हुआ है। तो हम ये चाहे अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वच्छ वातावरण में रहें। अपने कई लोगों ने इस कोविड के घड़ी में अपने से झाड़ू उठाया, हम सब लोग झाड़ू भी दे रहे हैं। अपने अपने घर के सेवक को कुछ दिन के लिए हम लोगों ने उनको घर में आने से परहेज किया, वो अपने घर में रहे। और हम लोगों ने इस कोविड के कालखंड में सब लोगों ने, कोई बर्तन बन रही, हमारी माता बहन, हम सब लोग भी अपना अपना बर्तन भी धो लेते हैं। तो स्वच्छता को अपनाना, जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छ विचार भी उत्पन्न, और स्वच्छ विचार ही वो हमारे स्वास्थ्य होने के दिशा में कारगर कदम होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए हाथ धो करके ही खाना चाहिए, हाथ धो करके ही हमें दिन में कई बार जो हाथ को अच्छी तरह धोने की जो बात इस कोविड के कालखंड में बताई गई है, ये रामबाण है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं आज के इस एसोचैम के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी पदाधिकारियों का, एसोचैम के हमारे सभी भाइयों का, और जो लोग इससे जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने आज का यह दिवस मनाने का काम किया है। इससे हजारों लाखों लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, इसमें कहीं दो मत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी। दीपक जी कुछ बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम दीपक सूद है, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने यहाँ हमारे साथ आज बनके बहुत we are very proud that you are with us and you have shared everything with us about your thinking about this whole space. I think you have covered a lot of things, sir. Commander Bali is going to coordinate this session, so I would request you to हमारे साथ रहिए सर. हमारे पास 2 speakers हैं जो अभी थोड़ी सी presentation करेंगे, so there are some things which we will learn from them as well, and we will come back to you and take some questions from you once we have gone through the presentations. अगर आपके आदेश हो तो आगे प्रोग्राम को बढ़ाया जाए. निश्चित रूप में बढ़ाइए, हम सब लोग उससे प्रेरणा ग्रहण. Over to you. थैंक यू दीपक जी. डॉक्टर गिरिधर ज्ञानी, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम सबको ये बेस्ट हैंड हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में कुछ बताएं. थैंक यू. नमस्कार. माननीय मंत्री जी को हमने देखा, उनके संपर्क में रहते हैं और उन्होंने जो मुझे बताना था उससे आधे से ज्यादा उन्होंने कवर कर दिया ऑलरेडी. तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाने की कोशिश करूंगा. मैं पहले तो आपको एक ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि ये हैंड हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है. क्या अभी एक मिनट जरा, मेरी स्लाइड शायद अभी नहीं आ रही है. ओके, इज इट अवेलेबल? हाँ, आगे ठीक है. तो ये जो मैं एक मिनट, हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? सर यस सर, हम आपको सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं. आप आगे चलिए. ओके, तो देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एंड मेडिकेशन एरर्स, ये 2 मुख्य कारण माने गए हैं हमारे हेल्थ केयर में जिनसे सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बढ़ती है. इसका हम ये भी बता सकते हैं एक तरीके से कि आउट ऑफ 25 पेशेंट्स, 1 out of 25 पेशेंट्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए या हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं. इनमें से 9% of them actually die. So this is a very serious phenomena from that point of view, and most of these hospital acquired infections are transmitted to the patient through the microorganism on the hands of healthcare workers. तो ये बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है. ये hand hygiene therefore is considered as one of the most important measures to prevent the hospital acquired infections. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे को जो आपने मेरा परिचय दिया था, I was privileged to have established the NABH in the country. तो उसमें भी शुरू से ही NABH के स्टैंडर्ड में हमारे 10 चैप्टर होते हैं और उनमें से 2 चैप्टर सिर्फ इन्हीं 2 बिंदुओं पे हैं. एक चैप्टर हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल पे है और दूसरा चैप्टर हमारा जो है मेडिकेशन मैनेजमेंट के ऊपर है. अब ये आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहा हूँ कि हमारे अगर ऑपरेशन थिएटर में चले जाएं या कोई भी हमारे डिपार्टमेंट में चले जाएं हमारे अस्पतालों में, तो जो मैं ये ग्रीन जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये सारे वो बिंदु हैं जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स किसी न किसी तरह से उसको स्पर्श करता है या उसको टच करता है और जो भी इन्फेक्शन है उसके हाथों से वहां जाता है या उन सरफेसेस पे अगर पहले से ही इन्फेक्शन है तो उसके हाथों में आ सकता है. और ये सरफेसेस जो है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है. अब आप ये देखिए कि WHO ने बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि आज WHO का दिन है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये 2 स्लाइड्स जो WHO बार बार सबको दिखाता रहता है कि उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से हैंड हाइजीन के 5 स्टेप दिखाए गए हैं. पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड हाइजीन या हाथ धोने हैं. उसके बाद आप अगर कोई भी एसेप्टिक या क्लीनिंग प्रोसीजर करते हैं, वूंड है या कोई और तरीके से पेशेंट को क्लीन करने के लिए आते हैं, तो वहां उसके पहले आपको हैंड हाइजीन या हाथ धोने हैं आपको. उसके बाद जब आपको कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होता है या आपको यूरिन कलेक्शन करना है, ब्लड कलेक्शन करना है, कोई भी ऐसी चीज जो आप कलेक्ट करते हैं, वहां आपको करने के बाद आपको अपने हैंड वॉश करने हैं. चौथी चीज जो है, आप पेशेंट को जब एक्चुअली फिजिकली टच करते हैं वहां आपको टच करने के बाद फिर आपको हैंड हाइजीन में जाना है.
एंड लास्ट जो है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स, आप देखिए जो सराउंडिंग्स हमने पिछले डायग्राम में दिखाई, उनको करने के बाद आपको फिर हैंड हाइजीन करना है। अभी जो बड़ी मुझे अच्छा लगा, माननीय मंत्री ने हमारे सामने बहुत ही आई थिंक 10 सेकंड के अंदर उन्होंने पूरी ये प्रक्रिया आपको करके दिखाई। ये प्रक्रिया जो है असल में देखने में आसान लगती है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जब भी हम इंटर्न्स को कभी ड्यूटी में लगाते हैं, कि आप सीनियर डॉक्टर्स को देखो या नर्सेस को देखो, क्या ये सब 8 स्टेप फॉलो होते हैं? तो हमें इनवैलिड में जो कंप्लायंस नजर आती हैं वो मुश्किल से 35 to 40% नजर आती है, क्योंकि हर बार हम इतनी जल्दी में होते हैं, हम एकदम रब ले लेते हैं और उसको जिस तरह से करने के बाद जितना भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। ये अगले डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखने के लिए, अगर आप देखें तो ये फिर स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप, आई थिंक ये जो गहरे नीले रंग के जो आपको दिखाए गए हैं, आप देखेंगे वो टिप्स हैं जो नीम के हमारे फिंगर टिप्स हैं, या अगर आप लेफ्ट हैंड जो एक थंब आपका रह जाएगा, ये वो पोर्शन है कि हम कितना भी अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं तो भी ये कई बार दी सरफेस रिमेन वो स्टेलाइज नहीं हो पाती है। तो इसीलिए वो जो 8 स्टेप्स हैं वो बहुत ही जरूरी है कि हम उसको लिटरली फॉलो करें। और कमांडर माली ने शुरू में जो बात कही थी कि हैंड हाइजीन करना बहुत ही आसान सी बात है, और इतनी हमारी आदत होती है कि जो चीज बहुत आसान होती है उसी को हम कैजुअल करते हैं। और इसीलिए ये है कि हैंड हाइजीन की एक्चुअल कंप्लायंस बहुत ही अच्छे अस्पतालों में भी 60 to 70% ही पाई गई है। ये हमारे सर्वे के रिजल्ट्स हैं। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये हैंड हाइजीन एक अपने आप में आइसोलेशन, यू कैनॉट प्रैक्टिस हैंड हाइजीन। इसका सबसे बड़ा जो तरीका है कि ईच हॉस्पिटल मस्ट हैव ए पेशेंट सेफ्टी कल्चर। जब आप पेशेंट सेफ्टी कल्चर आपके यहाँ होगा तब ये हैंड हाइजीन उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। हमने जब ये एनएबी स्टैंडर्ड बनाया था तो एनएबी का मतलब ये था कि इट वाज द फ्रेमवर्क फॉर पेशेंट सेफ्टी, एंड मैं आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज इस देश में बहुत अच्छी तरह से एनएबी को अपनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हॉस्पिटल की पॉलिसी में एक पॉलिसी शुड बी फोकस्ड ऑन द कल्चर ऑफ द सेफ्टी। अगर वी शुड हैव क्लियर लेड डाउन पॉलिसी दैट वी सपोर्ट द कल्चर ऑफ द सेफ्टी। इससे करने के लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि हम जो है एक सर्वे इसका बना हुआ है ऑलरेडी, देयर इज सर्वे फॉर्मेट फॉर असेसिंग द सेफ्टी कल्चर। ये actually enables also the safety culture, but there are other also criteria or the assessment checklist which is available. Actually, we must carry out the level of assessment of the current safety culture. एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में इतने साल जो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की क्वालिटी हेल्थ केयर, जो मुझे सबसे एक चीज सीखने को मिली वो ये थी कि अगर हम बजाय पूरे हॉस्पिटल का सर्वे करें, उसकी जगह हम हॉस्पिटल को अगर हम यूनिट में बांट दें, you may do it specialty based, you may do ward 1, ward 2, OT, या हम लेबोरेटरी में चले जाए। हम अगर इनको यूनिट्स में बांट दें और हर एक यूनिट का हम एक सेफ्टी कल्चर करें, और उसके बाद जब उसका स्कोर आए तो सबको बिठा के देखो भाई आपका स्कोर ये है, इनका स्कोर ये है। आप देखेंगे कि इससे कंपटीशन का माहौल पैदा होता था, भी आती थी कि उसका स्कोर हमसे बेटर क्यों है, Where are we lacking, which are the parameters जहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको यूनिट बेस्ड आप उसका सर्वे करें। उसके बाद सबसे जो कमी अभी भी है हमारे देश में, कई डेवलपिंग कंट्रीज में भी, कि एयर रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग, जब सेंटिनल इवेंट जो हमारे मिस हो जाते हैं वो हम डरते हैं, नर्सेज डरती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ डरता है, कई बार डॉक्टर्स भी डरते हैं कि हम अगर उसको रिपोर्ट कर लेंगे तो शायद हमारे ऊपर ब्लेम आएगा। तो हमारे ये कल्चर में होना चाहिए कि देयर विल बी नो ब्लेम इफ एनीबॉडी इज रिपोर्टिंग द एरर।
और अगर हम कई अस्पतालों में मैंने देखा है हिंदुस्तान में या बाहर भी कि उनको रादर रिवार्ड किया जाता है कि दिस पर्सन हैज बीन एबल टू रिपोर्ट। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, मेरे क्लिनिशियन भाई आप सुन रहे हैं इस बात को, कि एक टाइम आ गया है कि क्लिनिशियन हैज टू टेक कंप्लीट लीडरशिप रोल इन ड्राइविंग द पेशेंट सेफ्टी। हमें पेशेंट सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर या किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आगे बढ़ के खुद ईच एचओडी को आगे आना है और ये पेशेंट सेफ्टी के इनिशिएटिव को ट्राई करना है, असेसमेंट खुद करनी है और उसकी एनालिसिस करनी है और उसकी बेंचमार्किंग करनी है। तो ये एक कदम उठाना है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितने ही वेरिएबल अवेलेबल है आजकल, तो ये भी वेरिएबल हमारे पास है कि आदमी जो है ये 5 स्टेप जो मैंने बताए हैंड हाइजीन के वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे एकदम कुछ रिमाइंडर आ जाता है डॉक्टर के पास। एंड लास्ट में एक हुआ कि हमें रेगुलर रिव्यूज करते रहने हैं। कोई भी चीज आप करेंगे अगर कोई रिव्यू करके कम्युनिकेट नहीं करेंगे डाउन द लाइन, तो हर एक डिपार्टमेंट को नीचे पैरामेडिकल स्टाफ का कि ये हम कर रहे थे, हमें करना था, नहीं कर पाए या कितना अच्छा कर पाए, जब तक वो कम्युनिकेशन जाता नहीं रहेगा तो उसके नतीजे नहीं आएंगे। और लास्ट में मैं ये छोटा सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, वो यही है कि एक्चुअली जो हमारी जो अगर हम पेशेंट सेफ्टी के लेवल को बहुत ऊपर लाना चाहते हैं तो ये सब कुछ करने के लिए एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है और एम्पावरमेंट, जिसकी वजह से ट्रस्ट आता है लोगों में। क्योंकि ये वर्ड बहुत आसान है कि हम एम्पावर करेंगे लोगों को, लेकिन एम्पावर करना इतना आसान नहीं है। वो जो लीडरशिप है, हाउ डू दे मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड ट्रेन देम, एंड उसके बाद जब हम उनको अधिकार देते हैं करने के लिए, उन स्टाफ के अंदर वो ट्रस्ट रखा जाता है। तो ये आपको मेरा मतलब ये कल्चर बनाना है आपको, इफ यू वांट टू सक्सीड इन डूइंग द हैंड हाइजीन। एंड इस साथ ही मैं छोटा सा अपना ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। Thank you very much. Thank you, Dr. Girdhar Gyani. It was, आपने जो ये बातें बताई आज, ये दो चीजें बहुत जरूरी आपने बताई कि हैंड हाइजीन ठीक तरीके से और ठीक वक्त पे, ये बहुत ही जरूरी आपने बताया, और ठीक जगह पे, ये तीनों चीजें आई थिंक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और एक और चीज आपने बताई, ये कल्चर आई थिंक जब तक हमारे हर एक सिटीजन में, बच्चों से लेके बड़ों तक नहीं आएगा, तो आई थिंक ये हैंड हाइजीन की जो प्रैक्टिस है ये नहीं होगी। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिफोर आई मूव टू नहीं, बट माय ओनली पॉइंट वाज दिस कि ये कल्चरल चीजें हैं, एजुकेशन जो है, ये सारी शिफ्ट्स जो आदमी बात कर रहा है, आई थिंक। एंड व्हेन इट कम्स टू माय टर्न ऑफ पोस्टर्स, आई वुड लाइक टू से कि जो हम लोगों ने इन पोस्टर्स में से जो हक के बाहर आ रही है चीज, मंत्री महोदय आपके आदेश से बात कर रहा हूँ कि जो पोस्टर्स में बच्चों ने बातचीत दिखाई है, जिस किस्म से उन्होंने रंग के खेल से एक मैसेज जो सारी दुनिया के लिए बनाया है, एक अपने में ही एक इट्स अ वेरी मार्वलस अचीवमेंट, आई मस्ट से। और कमांडर बाली विल शेयर दोस पोस्टर्स, पर मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा इस वक्त पे कि ये एक पोस्टर्स 1200 के करीब बने हैं, पर उनमें से मतलब हर कोई जीता है उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई कम ध्यान है या किसी का कोई बहुत बढ़िया बना है, पर हर कंपटीशन में किसी ना किसी को आगे निकालना पड़ता है। तो 5, 6, 7 ऐसे पोस्टर्स हैं जो हम शेयर करेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे को कल चिट्ठी लिखे, आपके पास उसकी कॉपी भी आई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बधाई दी है एसोचैम और हम सबको मिलके कि ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो दुनिया के लिए और हमारी कंट्री के लिए, लोगों के लिए जो ये मैसेज लेके जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। So similarly, these posters could be used by the Department of Health, by the Family Welfare Departments as a gesture of हमारे बच्चों ने क्या क्रिएट किया है और क्या मैसेजिंग है, और इसको एक लार्जर सेंस में पूरी आपका जो मंत्रालय का नेटवर्क है उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। That's what one request that I thought I'll put to the minister. Back to you. Thank you, Deepak ji. I think it's a fantastic, request, and I think I'm sure, हम लोग जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम सब लोग पढ़ते हैं पेपर्स में, और जो जनरली जो थॉट्स आते हैं, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, करंट डेफिसिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अजीब बात यह है कि क्या हैंड हाइजीन और इकोनॉमी में कोई कोरिलेशन है? आई थिंक मेरे दोस्त आदित्य बिरलिया ये जरूर सोचते हैं कि हैंड हाइजीन और इकोनॉमी में भी एक कोरिलेशन है। A graduate of Stanford and MBA from Harvard,
He is an entrepreneur par excellence and an innovator. Mr. Aditya Berlia is the co-founder and pro-chancellor of FPJ Satya University, co-founder FPJ Satya and Swaran Group, and also CII Delhi State Council Chairman. He will today enlighten us on the topic hand washing and cleanliness and economy growth and transformation. It seems quite a strange one कि क्या एक छोटी सी चीज आपने हाथ धोने की can that determine economic growth of the country? So Aditya ji, over to you. Thank you. Thank you so much. Can I just get the presentation? I can just quickly share mine. Also, Navneet ji, I am also a very long-standing member of ASSOCHAM. So, and former committee members as well. So, oh yes, yes, absolutely. Yeah. Perfect. I Aditya hope you can ji, see my slides. as we are moving these days, I think ये boundaries of chamber जो है, I think हम लोगों को छोड़ देने चाहिए. It is very extremely important कि हम लोग जो है, हम एक देश बने और एक देश की इंडस्ट्री बने और इस देश को आगे चलाने की बात करें. That is the most important thing as far as I'm concerned. I'm a Director General of ASSOCHAM, but that's my view. Absolutely, Ji. Thank you for sharing that. I will only take about 10 minutes quickly, and just to make the point. So my topic is to try to link directly that hand washing and Swachh Bharat is actually not just a social policy, but it is an economic policy. And I think this is one of the big things that a lot of people don't get, that they see it as just as a social and a societal initiative. But hand washing and hygiene and Swachh Bharat is deeply, deeply impactful on our economy. And so I want to go beyond COVID-19. I think what's very nice is, and Shri Navneet ji had shared this, and the Honorable Minister also had, sir, in your stories have shared that, hand washing and Swachh Bharat and all was so important even post-COVID. And I'm very happy that one of the silver linings of this crisis is that we are using it to properly try to raise awareness, and people are taking it seriously. Because apart from COVID-19, we have so many diseases from typhoid, jaundice, hepatitis, even malaria, dengue, enterovirus, and worms, which impact millions of people in our country. And these are all there. And not only are they curable, but unfortunately, while they are there, they kill millions due to complications. And this is something that while we are tracking COVID-19 deaths, we also have to understand that millions of Indians still die from curable diseases in India, which are communicated because of poor hygiene and poor hand washing. But other countries with similar weather and demographics have such low instances of these, all these ones I mentioned. And it's a very simple answer: a proper sanitation, hygiene, and cleanliness. There is a societal culture, a focus on keeping your spaces clean, keeping your house clean, making sure you're drinking hygienic water, but also continuously avoiding germs by hand washing and sanitization. And health, by the way, is an essential part of economics. And I just want to go through this, if you would give me a moment to walk you through the economic theory behind this. People productivity, which is how productive is an individual, drives sustainable growth. The best way to increase wealth and prosperity is through increasing the productivity of people. What does this mean? It means that if a person is being paid X amount, how much is he able to deliver? And around the country, India has a very low people productivity in comparison to many countries in the West. And this has a lot to do with education and skilling, but a lot has to do with health. Because low people productivity keeps wages low and impacts GDP growth. It makes Indian firms and the Indian economy uncompetitive. And this is something that we don't cover a lot. Poor health across millions of people actually brings the entire country's economics and its competitiveness down. And it leads to large amounts of unemployment as companies invest more in machines than hiring people.
I want you to just imagine the impact of these diseases. A lot of them don't get this type of focus because we have cures. The idea is, okay, you go to the doctor, you get diagnosed, the doctor gives you some medicine, you take it for 2-3 weeks, and mostly you're cured. But one, there is a loss of working days, and either a loss of wages to the person who's working, or a loss of productivity for the firm. Even if people are going on paid sick leave, the company isn't able to be transformative. They're not able to work. The impact on family and caregivers also. Please note, when a person is sick, other people have to take care of them. Even if a child is sick, this means one of the parents or joint family or somebody has to stay home. They have to take them to the doctor. They have to make sure that they are well. And there is a huge mental stress from being ill, and even seeing our own family members, our loved ones, becoming ill. And a lot of these diseases, although the Honorable Health Minister has done a lot of work in ensuring with proper insurance and bringing down the cost of treatments, but there is still a financial cost and loss, either due to the lost wages or due to being able to maybe have an insurance but still not able to afford the complete treatment. And even when people recover, there is a reduced productivity and ability for days or weeks. And this is important. Just because a person has taken a 7-day course of antibiotics or something and now is back in back in office or back in the factory, it takes a while for the body to fully recover, for the mind to fully recover. And anxiety over future illnesses, and this is something we are only now figuring out the impact, leads to poor financial planning and decisions. People are not able to have good financial decisions because they are worried, what happens if I get sick? What happens if I get ill? Therefore, I need to reappropriate my resources. Swachh Bharat and hand washing is thus a imperative economic growth initiative. By lowering and curtailing disease transmission, we can rapidly increase the productivity of our country, leading to higher GDP growth. And what is most important is sustainable wage growth. And I want to put the emphasis on sustainable wage growth because, a lot of people say just increase minimum wages. But you can't increase minimum wages if there is not a productivity increase to match. And health is the best way to increase productivity. Healthy citizens, further, they reduce pressure on public and private healthcare systems and allowing resources to be better allocated. India has a severe problem of chronic diseases. We have a severe health crisis going on with heart disease, diabetes, all of these other things. But instead of focusing on the major issues, our entire health system is focused on infectious diseases which are curable but can be avoidable. A healthy and positive workforce allows skill stability. Now, this is very important to understand. If a company is worried that, look, I can't commit to a contract because what if a worker gets sick? And a lot of people are unable to deliver because of communicable diseases within factories and such. Having that ability that if I hire somebody, they are going to be healthy and they are going to show up to work every day is an enormous skill stabilizer for industry. And consistent good health leads to overall positivity. People understand that, look, I don't have memories of getting sick 3 times a year. I don't know people who are very ill. Therefore, instead of spending money on healthcare and out-of-pocket expenses, I can spend money on higher value and complex consumer growth, which is what we want India to move to, is to move to higher value add and complex consumption, rather than focusing only on basics like, how can I get a very cheap packet of antibiotics. Thank you very much. I am going to stop there. The key message which I want to get across to everybody is that there's a lot the government can do and has been doing about the economy. But the one thing that all of us can do, that is within the power is within ourselves, that we don't have to be dependent on the RBI or a bailout package and all, is to ensure each and every one of us stays healthy. And hand washing on a continuous basis, both at a personal level,
in our workplace, in our homes, and for our family members is the number one thing that will help the economy to recover, and that will give us long-term sustainable growth in the future. Thank you so much, Aditya ji, and very happy to hear those thoughts कि economy के साथ hand hygiene का क्या correlation है. I think हम over a lot of years we have seen that जब economy को कई shocks लगे, oil shock लगा या कोई और shock कहीं और लगा, economy जल्दी recover कर जाती है. लेकिन health care से जब जैसे अब हम कोविड के इस महामारी से गुजर रहे हैं, so the shocks which are from healthcare are much more dangerous and they can last for a very long time. Or hand hygiene, I think, is going to be one of the most important determinants of our health in the coming future. Deepak ji, any comments? No, not at this point, sir. You may like to take the next speaker, please. Thank you. Okay, एक hygiene hero कैसे बना जाए? How do you become a hygiene hero, which itself is an achievement, and it is one of those deeds which can put all of us in the path of better health and infections, lesser sickness. And इस hygiene hero topic पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में है Mr. Ravi Bhatnagar, who is the Director, External Affairs and Partnerships, Asia, Middle East and South Africa at Reckitt Benckiser. One of his many achievement was, अगर आप सब लोगों को याद है, Dettol बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन. ये जो कैंपेन थी ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड थी, और he holds a master's degree in healthcare administration for TIS Mumbai and also an alumni of the Harvard Business School. So over to you, Ravi, और हमें बताइए कि हम एक hygiene hero कैसे बन सकते हैं. You have to unmute yourself, please. Yeah, Ravi. Harinder, please connect with Ravi once again. In the meantime, sir, I would like to brief you, sir. हमने करीबन 50 लाख से ज्यादा साबुन बांटे हैं, जिसमें 20 लाख साबुन सिर्फ यूपी में दिए गए हैं, और दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में अलग अलग जगह में जा के हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है. एंड आवर कॉलीग रवि from Reckitt Benckiser has been very aggressively and very kindly working with us to ensure that ये जो लोग हैं जिनको जरूरत है चीजों की, उसे सही टाइम पे सही जगह पे मिल पाए. Do we have can you Hari? hear me now? Yeah, Ravi, go ahead. We can hear you. Yeah. First of all, thank you to ASSOCHAM, to Honorable Minister and Narayana Super Specialty Healthcare. It's a very valid topic on which we are, discussing today. और मंत्री जी, आपका हमें बहुत सारा सहयोग मिला. जब हम माधुरी दीक्षित के साथ में डिटॉल का पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट बना रहे थे भारतवर्ष के लिए, तो आपने हमें बहुत योगदान दिया उसके अंदर, और हम आपके बहुत ऋणी हैं उसके लिए. और ASSOCHAM के साथ में हमने कुल मिला के हमारा प्लान है 1 करोड़ डिटॉल सोप सारी स्टेट्स में इंडिया में देने के लिए. थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ. बैकग्राउंड में सर, जैसे ही ये स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके 24 घंटे में हमने 100 करोड़ रुपए जो है वो हमने फिक्स किए कि हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे. ASSOCHAM हमारा वन ऑफ द वेरी लीडिंग पार्टनर्स है जिसके साथ में हम स्वच्छ भारत में काम कर रहे हैं. और हमने बिहार में, बक्सर में, बिहार भागलपुर में और यूपी में और पूरे भारत में अगर मैं बताऊं तो हमने अराउंड 5 लाख टॉयलेट्स का जो निर्माण किया अलग अलग जगह पे, स्पेशली स्वच्छ भारत रूरल के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का कि हमारे जो सारे जो प्रयत्न है उसको मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात किया उसके बारे में. और 2018 में राष्ट्रपति द्वारा मुझे एक अवार्ड दिया गया, वो था स्वच्छता हीरो अवार्ड. तो ये टॉपिक आज मेरे लिए बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा यूथ आज हम लोग को यहाँ पे सुन रहा है. हम सब हीरोज हैं, हम सब में एक हीरो छुपा हुआ है. टाइम की सिर्फ बात है कि हम अपना हीरो को अपने अंदर से कैसे उजागर करते हैं, कैसे हम बाहर लेके आते हैं, और हम सब लोग अपना अपना जो कर्तव्य है उसको बहुत निष्ठा पूर्वक निभाते हैं. सिर्फ 2-3 चीजें करने की जरूरत है जो मुझे लगता है एज ए हीरो. पहली बात,
कोई चीज, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि कम्युनिटीज को बताना बहुत मुश्किल है हैंड वॉशिंग के लिए, उनको समझ नहीं आता। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है पर्सनल हाइजीन के बारे में और हैंड वॉशिंग के बारे में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है दूसरों का डिफरेंट हो। मेरी बात को जो है वो बैक करता है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि अतुल गवांडे जी ने जो एक स्टडी किया था, हार्वर्ड चेकलिस्ट, जिसको यूपी के अंदर भी काफी सारी जगह पे और बिहार में भी उसको यूज किया जा रहा है मैनिफेस्टो को, और कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शंस को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सके। सब में है हीरो, बस हीरो को उजागर करने की जरूरत है। आज मुझे मेरी कंपनी मौका देती है कि आप रवि जी, आपके पास जब खाली टाइम है तो आप अपना मोटरसाइकिल उठाइए और जाइए। जब कोविड-19 का लॉकडाउन था तो उससे पहले मेरे पास में 24 घंटे का समय था। उस 24 घंटे के समय में दिल्ली और एनसीआर के अंदर मैंने कोई कॉलोनी, कोई मोहल्ला, कोई स्लम नहीं छोड़ा। अपने बाइकिंग फ्रेंड्स के साथ में हम लोग टोटल 50 थे, और हम लोग ने लाखों डिटॉल सोप जो है और लाखों जो किट्स हैं, हाइजीन किट्स, वो हमने पूरे दिल्ली और एनसीआर में जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे हमने किया। और मतलब उसके अंदर बहुत सारे और लोग जुड़े। जिसको हमने सपोर्ट किया उसने आगे और लोगों को सपोर्ट किया। हमारा सिर्फ एक कंडीशन था, अगर मैं आज आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आप अगले 5 लोग को और सपोर्ट करने वाले हो। तो जैसे मल्टी चेन मार्केटिंग का सिस्टम होता है, उसी तरह से आप अपना एक अपील कर रहे हो दूसरे लोग को, आप भी हीरो बनिए, आप भी लोगों को चिन्हित करिए जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, और पूरे दिल से मदद करिए। दूसरी बात ये है कि सर, मुझे ये लगता है बेसिकली कि ये टाइम ऐसा है कि स्कूल्स में पढ़ाई चेंज हो जाएगा, स्कूल चलाने का तरीका चेंज हो जाएगा, कॉलेज चलाने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर आप देखते हैं पब्लिक प्लेसेस, अगर आप देखते हैं स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो वो सबसे लास्ट में खुलने वाला है, एज पर द जोन्स, एज पर द कैटेगरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम डिटॉल का ये प्रण है कि आज हम अराउंड 13 मिलियन स्कूल किड्स को रीच करते हैं हर साल। तो हम लोग ने पूरा इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है कि हम हर स्कूल में, जो कि अराउंड 9 लाख स्कूल है इंडिया में, उन 9 लाख स्कूल्स में हम लोग हीरोज को क्रिएट करें, हीरोज में इन्वेस्ट करें, ताकि ये जो हाइजीन है, ये हाइजीन बहुत डीप रूटेड रहे। और हमारा सपोर्ट हमेशा से है। बहुत सारा डिस्कशन होता है कि क्या हाइजीन अभी कोविड-19 के लिए है। मेरे पास में कुछ ऐसे उदाहरण जो मैं सबके साथ में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में चालू हुआ तो लोगों ने बोला ये तो मोदी जी भारत में इलेक्शन और वोट के लिए करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इस पूरे कार्यक्रम को बांग्लादेश लेके गया, जिसका नाम है पोरिचो बांग्लादेश, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के बराबर है। वैसे ही मैं क्लीन नाइजीरिया में इस प्रोग्राम को लेके गया, सेम उसी तरह से क्लीन साउथ अफ्रीका में लेके गया, और मेरा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पे भी मैं इसको लेके गया, साफ होगा पाकिस्तान। तो आज ये प्रोग्राम इंडिया से मैं 5 कंट्रीज में लेके गया हूँ मंत्री जी, और मुझे बहुत ज्यादा गर्व है इस बात का कि जो हमारा जो इंडिया मॉडल है काम करने का, इसका हर जगह पे इसके बारे में बात होती है। और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस है। और ये सिर्फ मैं अकेला हीरो बन के या हीरो के बारे में टॉक करके नहीं कर सकता। हीरो सब में बैठा है, अलग अलग तरह से हीरो है। बच्चों में हीरो है, डॉक्टर्स में हीरो है, पुलिस वालों में हीरो है, फायर ब्रिगेड वालों में हीरो है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स में हीरो है, पॉलिटिशियंस में हीरो है, एसडीएम में हीरो है, कलेक्टर में हीरो है, एसओचएम में हीरो है, सीआईआई में हीरो है। बस हीरो निकलने की बात है कि कौन कितना समय दे सकता है। अगर चंद मिनट सब लोग दें तो हम लोग ज्यादा बेटर तरह से हम लोग तैयार हो जाएंगे। मैंने अपने करियर में सार्स, इबोला और ये तीसरा अभी ये कोविड-19 है, 3 पेंडेमिक्स को मैंने रिस्पॉन्ड किया है अपने करियर के अंदर ग्लोबली। तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से हर्ष भी है कि जब स्वच्छ भारत की बात आई तब भी सरकार के साथ में मैं मिलकर काम कर पाया, और आज स्वस्थ भारत की बात आ रही है, हैंड वॉशिंग की बात आ रही है, तो मैं आप जैसे सब दिग्गजों के साथ में मिलके एक छोटा सा कदम लेने की बात कर रहा हूं। और हो सकता है अगर आप लोग मेरी इस टॉक से थोड़ा सा भी मोटिवेटेड है, हर आदमी एटलीस्ट अपने नेक्स्ट जो इससे भी आप बात करेंगे, अपने दोस्त से, अपने परिचित से, अपने घर में, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, सबसे बात करिए हैंड वॉशिंग की। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा डिटॉल से हाथ साबुन कर धोइए, बस मैं बोल रहा हूँ साबुन से हाथ जरूर धोइए, चाहे कोई भी साबुन हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और साबुन जो है वो सबसे ज्यादा एक किफायती जो है वो मीन्स है जिससे आप अपना इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सरकार बहुत कुछ कर रही है, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी से, प्रोविजन से,
आरोग्य भारत से, आरोग्य सेतु ऐप से सब लोग मिलकर अपना पार्ट निभाएं और हम लोग कोशिश करें कि हम अपने इंडिया से, अपने देश से, भारत से और इंडिया से, मैं दोनों की बात कहूंगा, दोनों से हम कितना जल्दी हम कोरोना को बाहर कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सब लोग मिलकर सहकार करें और प्रण लें कि हम सब लोग साबुन से हाथ धोने की बात एटलीस्ट अपने रोज प्रतिदिन एक आदमी से एटलीस्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल प्लीज। थैंक यू सो मच रवि जी, वंडरफुल थॉट्स। और मंत्री जी, आपको ये बताना चाहूंगा, आज तो एक हैंड हाइजीन डे है और आज हम आज के दिन नारायणा हेल्थ, एसोचैम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब मिलके आज के दिन हम रोड्स में, कई कॉलोनीज में, पुलिस स्टेशंस में जो आज हमारे ड्यूटी पे पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, और उनको सब आज हम हैंड सैनिटाइजर्स और साबुन वगैरह आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सुन के आपको काफी बहुत खुशी होगी। अब मैं चलता हूँ हमारे सेक्रेटरी जनरल की और दीपक जी, हम ऑलमोस्ट इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बच्चों के बारे में और बाकी और चीजों के बारे में। धन्यवाद। बीच बीच में मैं बोलता रहा हूं, तो जो मैंने बोलना था काफी हद तक मैं बोल चुका हूं, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो निकल के आई हैं। Aditya was speaking about predictability is what business is like. Prevention is better. हर चीज में preventive maintenance of our equipment, our capital goods, हम भी एक capital good हैं, हमारी भी preventive maintenance होना better है। Wellness is better than going to a hospital and getting ourselves treatment. You fall ill, obviously we are very, very well equipped to take care of that disease, and our doctors and hospitals are very well equipped. But I think with the large population that we have, prevention plays a more important role. Disruption of any kind, किसी भी किस्म की बाधा। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सर, मैं एक दूसरी मीटिंग है हमारी, तो मैं उससे जोड़ना चाहूंगा। बहुत आप सब लोगों का सहयोग मिला और आपने आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें सुनने को भी मिला। जैसा कि हम जानते हैं, NSSO के द्वारा जो सर्वे हुआ है उसमें 35 से 36% ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों में साबुन से हाथ नहीं धोते हैं या बहुत कम लोग हाथ धोते हैं, तो उससे कई बीमारियां भी पैदा होती है और वो हमारे लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। उस गरीब को पता नहीं कि हमको किस प्रकार से ऐसी बीमारियों से हम जकड़ गए। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन आवश्यक है, सतत जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे विश्वास, जिस प्रकार से आज आपने एसोचैम अग्रवाल जी है, जी वाली है, हमारे गिरधर गोयल जी है, तो और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि आज के इस हैंड हाइजीन डे के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ और विशेष करके एसोचैम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हम सब लोगों को आज इस अवसर पर जोड़ा और हमें प्रेरणा जगाई, दूसरों को भी जगाने का हम सब लोगों ने प्राप्त किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको विनती पूर्वक नमस्कार। जय हिंद। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इसमें दो मत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अभी थोड़ा ऑफिस खुलने शुरू हुए हैं, तो आपको आगे तकलीफ देंगे आपके ऑफिस में। और मैंने जैसे बोला था साहब, वो जो पोस्टर्स हैं उनको मैं पर्सनली लेके आऊंगा आपके पास, और चाहूंगा अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, अगर आप 2 मिनट की अनुमति दें। हाँ जी 2 मिनट प्लीज। हरिंदर जल्दी से पोस्टर्स लगाइए। सर 1200 पोस्टर्स आए हैं और उनमें से हमने 6 पोस्टर्स चूज किए हैं। जल्दी चलिए पोस्टर्स पे जाइए। हाँ, ये देश भर से 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास के बच्चे हैं जिनकी ये कल्पनाएं हैं, जिन्होंने अपने हाथ से ये चीजें बनाई हैं। और अगर आप एक एक पोस्टर को देखिएगा तो कल्पनाइक तरीके से बच्चों ने किस तरीके से इन चीजों को अंजाम दिया है, बहुत 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 खूबसूरत तरीके से। मैं चाहूंगा साहब कि ये अगर आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रमोशन में काम आए तो बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होगी। इन बच्चों को डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से
कुछ पुरस्कार और कुछ सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए जो एसोचैम भी देगा, बट मेरे हिसाब से मैं आपकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ से भी एक लेटर सर्टिफिकेट इन बच्चों को इशू किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा देख के बच्चों का, मेरे पोते जो है, बड़े पोते, वो बड़े अच्छे कलाकार हैं, वो दिन भर में इस प्रकार की कृतियां करते रहता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चों के द्वारा मैं बच्चों से प्रेरणा ग्रहण कर रहा हूँ और उन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और निश्चित रूप से उन्हें आशीर्वाद का पुरस्कार तो दे ही रहे, लेकिन उनके कीर्ति का भी पुरस्कार हम विभाग की ओर से जरूर प्रदान करने का आपकी रवि जी बहुत ज्यादा कीर्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Deepak ji, can you, I mean, you want to continue or shall I? Yeah, yes, go ahead, sir. I think I. Okay, Harinder ji, can we see the posters once more? I think you know, a lot of parents are also logged in, बहुत सारे. So एक बार मैं फिर से जो दीपक जी ने बात की उसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त लूंगा इन posters को. Can we see the first slide? So you know, to all of you, as Deepak ji was saying, more than 1,200 students participated in this poster competition. And as far as we are concerned, every one of the participants is a winner, as Deepak ji was also saying. And you know, everyone will be given an e-certificate from ASSOCHAM and Narayana Health. But you know, there were some of these posters which really stood out, and we wanted to show them today to all of you. So I'll just show these posters to you. And also, so this is, so पहली जो category थी वो standard 5th से लेके 8th तक थी. So 4 posters हमने consolation prize के लिए select किए. Miss Yashika Saini 5th A class, Miss Mehul Jain 8th D, Aniket Khanna 6th standard, Divyansh Sinha 8th D. आगे चलिए हरिंदर जी, ये पोस्टर्स हैं उनके, देखिए. और ये 9th से 12th तक जो बच्चे थे उनके जो रनर्स अप थे, प्रियांशी 9th क्लास, स्नेहल शुभदी 12th स्टैंडर्ड, अद्वित राजपाल 10th G, आदित्य 9th A. और आगे चलिए. और जो विनर फर्स्ट प्राइज इसको मिला है स्टैंडर्ड 5th से 8th, ये पोस्टर आप देखिए कितना सुंदर, कितने कलर्स इसमें देखिए, क्या इट्स सच अ ब्यूटीफुल पोस्टर. अन्वेषा होटा 5th A क्लास की ये बच्ची हैं और इन दैट कैटेगरी शी वन द फर्स्ट प्राइज. आगे चलिए. एंड ये स्टैंडर्ड 9th से 12th तक जो फर्स्ट प्राइज की विनर हैं, ये भी लवन्या 9th स्टैंडर्ड की बच्ची हैं. सो आप देखेंगे कि आई थिंक बच्चों का एंथुसियाज्म देख के हम लोग भी दंग रह गए. एंड वी नेवर थॉट दैट इतना सारा अच्छे पोस्टर्स, इतने सारे बच्चे. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को. एंड यू नो, ये जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं ये कंटिन्यू रखें. क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू दीपक जी. You bowled me with that one. Thank you so much, Commander Bali. I think you have coordinated this entire event with great precision and you know, like it's called like the armed forces, and absolutely bang on with quality and planning. Very honestly, you know, as ASSOCHAM, we work with a lot of our partners, and therefore the posters that have come up, the thoughts of various speakers that have come up is actually you know, it kind of amazes me looking at how much we have come forward. This COVID has brought in more discussions on this hand hygiene thing, but I think this hand hygiene is something which is going to stay. It is not only at hand hygiene, I think it is at female hygiene, personal hygiene, and hand hygiene. Extremely, extremely important. And ASSOCHAM recommits itself on all these 3 spaces. We are doing everything that is possible in our means and beyond our means. I think ASSOCHAM is now stretched at all ends, and our members, our partners are the ones we look at, and we always are supported by people like you at Narayana Health, Ravi, a very dear friend, Reckitt Kaiser, ITC, Hindustan Unilever, Abbott Healthcare, Himalaya Wellness, APJ Group. And you know, whilst these are the names that I've used, which have been currently what are, but there is a huge list of people who are working with their own labor, their own factories. ASSOCHAM has a membership of 4.5 lakh members across India, and each one of them doing their bit. So I would also like to put on record is, you know, when you're washing hands, there's a component which is very rare, which is very essential, and that is water.
and ASSOCHAM commits and on the usage of this most important aspect is the usage of water and how we can recycle the used water. They both go hand in hand, and hand hygiene with hand in hand of recycling of this water is most important, and that's what I would like to close with. Thank you so much. Thank you everyone and thank you to my fellow panelists और जो लोग आज हमारे साथ इसमें जुड़े, इतने सारे आप लोग इस समय इस वेबिनार में हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रगुजार और I think we should continue on this journey. It is just a start today, or maybe start ever since we have started looking at high-end hygiene and these practices nicely. Thank you very much. Keep safe and keep healthy. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you.